پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب خدا اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے جب کفار بھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، کھائیں پیئیں اور مزے اڑائیں، اور امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رہیں۔ ان قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم نے کسی قریہ کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی تھی۔ کوئی امت نہ اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے، تو دیوانہ ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو فرشتوں کو کیوں سامنے نہیں لاتا ہے؟ حالانکہ ہم فرشتوں کو حق کے فیصلے کے ساتھ ہی بھیجا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی مختلف قوموں میں رسول بھیجے ہیں، اور جب ان کے پاس رسول آتے ہیں تو یہ صرف ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ہم اسی طرح اس گمراہی کو مجرمین کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کبھی ایمان نہ لائیں گے کہ ان سے پہلے والوں کا طریقہ بھی ایسا ہی رہ چکا ہے۔ ہم اگر آسمان میں ان کے لیے کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ لوگ دن دہاڑے اسی دروازے سے چڑھ جائیں تو بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کر دیا، اور ہر شیطان رجیم سے محفوظ بنا دیا، مگر یہ کہ کوئی شیطان وہاں کی بات چرانا چاہے تو اس کے پیچھے پھینکتا ہوا شعلہ لگا دیا گیا ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں، اور ہر چیز کو معینہ مقدار کے مطابق پیدا کیا ہے، اور اس میں تمہارے لیے بھی اسباب معیشت قرار دیے ہیں، اور ان کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو۔ اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں، اور ہم ہر شے کو ایک معین مقدار میں ہی نازل کرتے ہیں۔ اور ہم نے ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والا بنا کر چلایا ہے، پھر آسمان سے پانی برسایا ہے جس سے تم کو سیراب کیا ہے، اور تم اس کے خزانے دار نہیں تھے۔ اور ہم ہی حیات و موت کے دینے والے ہیں، اور ہم ہی سب کے والی و وارث ہیں۔ اور ہم تم سے پہلے گزر جانے والوں کو بھی جانتے ہیں اور بعد میں آنے والوں سے بھی باخبر ہیں۔ اور تمہارا پروردگار ہی سب کو ایک جگہ جمع کرے گا کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ اور ہم نے انسان کو سیاہی مائل نرم مٹی سے پیدا کیا ہے جو سوکھ کر کھن کھن بولے لگتی ہے، اور جنات کو اس سے پہلے زہریلی آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں سیاہی مائل نرم کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح حیات پھونک دوں تو سب کے سب سجدہ میں گر پڑنا۔ تو تمام ملائکہ نے اجتماعی طور پر سجدہ کر لیا علاوہ ابلیس کے کہ وہ سجدہ گزاروں کے ساتھ نہ ہو سکا۔ اللہ نے کہا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ گزاروں میں شامل نہ ہو سکا؟ اس نے کہا کہ میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تم نے سیاہی مائی خشک مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے روز حشر تک کی مہلت دے دے۔ جواب ملا تجھے مہلت دے دی گئی ہے ایک معلوم اور معین وقت کے لیے۔ اس نے کہا کہ پروردگار جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں ان بندوں کے لیے زمین میں ساز و سامان آراستہ کروں گا اور سب کو اکٹھا گمراہ کروں گا علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنا لیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے علاوہ ان کے جو گمراہوں میں سے تیری پیروی کرنے لگے۔ اور جہنم ایسے تمام لوگوں کے لیے آخری وعدہ گاہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں اطلاع دو۔ جب وہ لوگ ابراہیم کے پاس وارد ہوئے اور سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے خوف زدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم آپ کو ایک فرزند دانا کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں
ابراہیم نے کہا کہ اب جبکہ بڑھاپا چھا گیا ہے تو مجھے کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی بشارت دے رہے ہیں، خبردار آپ مایوسوں میں سے نہ ہو جائیں۔ ابراہیم نے کہا کہ رحمت خدا سے سوائے گمراہوں کے کون مایوس ہو سکتا ہے؟ پھر کہا کہ مگر یہ تو بتائیے کہ آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، علاوہ لوط کے گھر والوں کے کہ ان میں کے ہر ایک کو نجات دینے والے ہیں، علاوہ ان کی بیوی کے کہ اس کے لیے ہم نے طے کر دیا ہے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر جب فرشتے آل لوط کے پاس آئے اور لوط نے کہا کہ تم تو اجنبی قسم کے لوگ معلوم ہوتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں آپ کی قوم شک کیا کرتی تھی، اب ہم وہ برحق عذاب لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ آپ رات رہے اپنے اہل کو لے کر نکل جائیں اور خود پیچھے پیچھے سب کی نگرانی کرتے چلیں اور کوئی پیچھے کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جدھر کا حکم دیا گیا ہے سب ادھر ہی چلے جائیں۔ اور ہم نے اس امر کا فیصلہ کر لیا ہے کہ صبح ہوتے ہوتے اس قوم کی جڑیں تک کاٹ دی جائیں گی۔ اور ادھر شہر والے نئے مہمانوں کو دیکھ کر خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے۔ لوط نے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، خبردار ہمیں بدنام نہ کرنا اور اللہ سے ڈرو اور رسوائی کا سامان نہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو سب کے آنے سے منع نہیں کر دیا تھا؟ لوط نے کہا کہ یہ ہماری قوم کی لڑکیاں حاضر ہیں، اگر تم ایسا ہی کرنا چاہتے ہو۔ آپ کی جان کی قسم یہ لوگ گمراہی کے نشے میں اندھے ہو رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا، پھر ہم نے انہیں تہو بالا کر دیا اور ان کے اوپر کھڑنجے اور پتھروں کی بارش کر دی۔ ان باتوں میں صاحبان ہوش کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ بستی ایک مستقل چلنے والے راستے پر ہے، اور بے شک اس میں بھی صاحبان ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اگرچہ ایکا والے ظالم تھے تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں واضح شاہراہ پر ہیں۔ اور اصحاب ہجر نے بھی مرسلین کی تکذیب کی، اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دیں تو وہ اعراض کرنے والے ہی رہ گئے۔ اور یہ لوگ پہاڑ کو تراش کر محفوظ قسم کے مکانات بناتے تھے، تو انہیں بھی صبح سویرے ہی ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، تو انہوں نے جس قدر بھی حاصل کیا تھا کچھ کام نہ آیا۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو برحق پیدا کیا ہے، اور قیامت بہرحال آنے والی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار سب کا پیدا کرنے والا اور سب کا جاننے والا ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار میں بعض افراد کو ہم نے جو کچھ نعمات دنیا عطا کر دی ہیں ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اور اس کے بارے میں ہرگز رنجیدہ بھی نہ ہو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شانوں کو صاحبان ایمان کے لیے جھکائے رکھیں اور یہ کہہ دیں کہ میں تو بہت واضح انداز سے ڈرانے والا ہوں، جس طرح کہ ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا جو کتاب خدا کا حصہ بانٹ کرنے والے تھے، جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی قسم کہ ہم ان سے اس کے بارے میں ضرور سوال کریں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا واضح اعلان کر دیں جس کا حکم دیا گیا ہے، اور مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیں۔ ہم ان استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں جو خدا کے ساتھ دوسرا خدا قرار دیتے ہیں، اور عنقریب انہیں ان کا حال معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں سے دل تنگ ہو رہے ہیں، تو اب اپنے پروردگار کے حمد کی تسبیح کیجئے اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو جائیے، اور اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امر الہی آ گیا ہے، لہذا اب بلا وجہ جلدی نہ مچاؤ کہ خدا ان کے شرک سے پاک و پاکیزہ اور بلند و بالا ہے۔ وہ جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کو روح کے ساتھ نازل کر دیتا ہے کہ ان بندوں کو ڈراؤ اور سمجھاؤ کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہذا مجھ ہی سے ڈرے۔ اسی خدا نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ ان کے شریکوں سے بہت بلند و بالاتر ہے۔ اس نے انسان کو ایک قطرہ نجس سے پیدا کیا ہے، مگر پھر بھی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا ہے۔ اور اسی نے چوپایوں کو بھی پیدا کیا ہے جن میں تمہارے لیے گرم لباس
और दीगर मुनाफे का सामान है, और बास को तो तुम खाते भी हो, और तुम्हारे लिए इन्हीं जानवरों में से जीनत का सामान है जब तुम शाम को इन्हें वापस लाते हो और सुबह को चरागाह की तरफ ले जाते हो। और ये हैवानात तुम्हारे बोझ को उठाकर इन शहरों तक ले जाते हैं जहां तक तुम जान जोखिम में डाले बगैर नहीं पहुंच सकते थे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ा शफीक और मेहरबान है, और उसने घोड़े, खच्चर और गधे को पैदा किया है ताकि इस पर सवारी करो और इसे जीनत भी करार दो। और वो ऐसी चीजों को भी पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं है, और दरमियानी रास्ते की हिदायत खुदा की अपनी जिम्मेदारी है। और बाज रास्ते कश भी होते हैं, और वो चाहता तो तुम सबको जबरदस्ती राह रास्त पर ले आता। वही खुदा है जिसने आसमान से पानी नाजिल किया है, जिसका एक हिस्सा पीने वाला है और एक हिस्से से तरफ पैदा होते हैं जिनसे तुम जानवरों को चराते हो। वो तुम्हारे लिए ज़रात, जैतून, खुरमे, अंगूर और तमाम फल इसी पानी से पैदा करता है। इस अम्र में भी साहिबाने फिक्र के लिए इसकी कुदरत की निशानियां पाई जाती हैं, और उसी ने तुम्हारे लिए रात, दिन और आफताब व महताब सबको मुसख्खर कर दिया है, और सितारे भी उसी के हुक्म के ताबे हैं। बेशक इसमें भी साहिबाने अक्ल के लिए कुदरत की बहुत सी निशानियां पाई जाती हैं। और जो कुछ तुम्हारे लिए इस जमीन के अंदर मुख्तलिफ रंगों में पैदा किया है, इसमें भी इबरत हासिल करने वाली कौम के लिए इसकी निशानियां पाई जाती हैं। और वही वो है जिसने समंदरों को मुसख्खर कर दिया है ताकि तुम इसमें से ताजा गोश्त खा सको और पहनने के लिए जीनत का सामान निकाल सको। और तुम तो देख रहे हो कि कश्तियां किस तरह इसके सीने को चीरती हुई चली जा रही हैं, और यह सब इसलिए भी है कि तुम उसके फजलो करम को तलाश कर सको, और शायद इसी तरह उसके शुक्रगुजार बंदे भी बन जाओ। और उसने जमीन में पहाड़ों के लंगर डाल दिए ताकि तुम्हें लेकर अपनी जगह से हट ना जाए, और नहरें और रास्ते बना दिए ताकि मंजिल सफर में हिदायत पा सको, और अलामात मुअय्यन कर दी, और लोग सितारों से भी रास्ते दरियाफ्त कर लेते हैं। क्या ऐसा पैदा करने वाला उन जैसा हो सकता है जो कुछ नहीं पैदा कर सकते? आखिर तुम्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? और तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार भी करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान और बख्शने वाला है, और अल्लाह ही तुम्हारे बातिन और जाहिर दोनों से बाखबर है। और उसके अलावा जिन्हें ये मुशरिकीन पुकारते हैं वो खुद ही मखलूक हैं, और वो किसी चीज को खल्क नहीं कर सकते हैं। वो तो मुर्दा है, इनमें जिंदगी भी नहीं है, और ना इन्हें यह खबर है कि मुर्दे कब उठाए जाएंगे। तुम्हारा खुदा सिर्फ एक है, और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं इनके दिल मुनकिर किस्म के हैं, और वो खुद मगरूर और मुतकब्बिर हैं। यकीनन अल्लाह इन तमाम बातों को जानता है जिन्हें ये छुपाते हैं या जिनका इजहार करते हैं। वो मुस्तकबिरीन को हरगिज़ पसंद नहीं करता है। और जब इनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या क्या नाजिल किया है, तो कहते हैं कि ये सब पिछले लोगों के अफसाने हैं, ताकि ये मुकम्मल तौर पर अपना भी बोझ उठाएं और अपने इन मुरीदों का भी बोझ उठाएं जिन्हें बिला इल्म फहम के गुमराह करते रहे हैं। बेशक ये बड़ा बदतरीन बोझ उठाने वाले हैं। यकीनन इनसे पहले वालों ने भी मक्कारियां की थी, तो अजाब इलाही इनकी तामीयात तक आया और इसे जड़ से उखाड़ फेंक दिया, और इनके सरों पर छत गिर पड़ी, और अजाब ऐसे अंदाज से आया कि इन्हें शऊर भी ना पैदा हो सका। इसके बाद वो रोज क़यामत इन्हें रुस्वा करेगा और पूछेगा कि कहां हैं वो मेरे शरीक जिनके बारे में तुम झगड़ा किया करते थे। उस वक्त साहिबाने इल्म कहेंगे कि आज रुस्वाई और बुराई इन काफिरों के लिए साबित हो गई है, जिन्हें मलाइका इस आलम में उठाते हैं कि वो अपने नफ्स के जालिम होते हैं, तो उस वक्त अतात की पेशकश करते हैं कि हम तो कोई बुराई नहीं करते थे। बेशक खुदा खूब जानता है कि तुम क्या किया करते थे। जाओ अब जहन्नुम के दरवाजों से दाखिल हो जाओ और हमेशा वहीं रहो कि मुस्तकबिरीन का ठिकाना बहुत बुरा होता है। और जब साहिबाने तक़वा से कहा गया कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल किया है, तो उन्होंने कहा कि सब खैर है। बेशक जिन लोगों ने इस दुनिया में नेक अमाल किए हैं इनके लिए नेकी है, और आखिरत का घर तो बहरहाल बेहतर है, और वो मुत्तकीन का बेहतरीन मकान है। वहां हमेशा रहने वाले बागात हैं जिनमें ये लोग दाखिल होंगे, और इनके नीचे नहरें जारी होंगी। वो जो कुछ चाहेंगे सब इनके लिए हाजिर होगा कि अल्लाह इसी तरह इन साहिबाने तकवा को जजा देता है जिन्हें मलाइका इस आलम में उठाते हैं कि वो पाको पाकीज़ा होते हैं, और इनसे मलाइका कहते हैं कि तुम पर सलाम हो, अब तुम अपने नेक अमाल की बिना पर जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या ये लोग सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इनके पास मलाइका आ जाए या हुक्म परवरदिगार आ जाए? तो यही इनके पहले वालों ने भी किया था,
और अल्लाह ने इन पर कोई जुल्म नहीं किया है, बल्कि ये खुद ही अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि इनके अमाल के बुरे असरात इन तक पहुंच गए, और जिन बातों का ये मजाक उड़ाया करते थे, इन्हीं बातों ने इन्हें अपने घेरे में ले लिया और फिर तबाह और बर्बाद कर दिया। और मुशरिकीन कहते हैं कि अगर खुदा चाहता तो हम या हमारे बुजुर्ग उसके अलावा किसी की इबादत ना करते और ना उसके हुक्म के बगैर किसी शय को हराम करार देते। इसी तरह इनके पहले वालों ने भी किया था। तो क्या रसूलों की जिम्मेदारी वाज़ेह ऐलान के अलावा कुछ और भी है? और यकीनन हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा है कि तुम लोग अल्लाह की इबादत करो और तागूत से इज्तनाब करो। फिर इनमें बास को खुदा ने हिदायत दे दी और बास पर गुमराही साबित हो गई। तो अब तुम लोग रूए जमीन में सैर करो और देखो कि तकजीब करने वालों का अंजाम क्या होता है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाहिश है कि यह हिदायत पा जाए, तो अल्लाह जिसको गुमराही में छोड़ चुका है अब इसे हिदायत नहीं दे सकता और ना इनका कोई मदद करने वाला होगा। इन लोगों ने वाकई अल्लाह की कसम खाई थी कि अल्लाह मरने वालों को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता है, हालांकि यह उसका बरहक वादा है। यह और बात है कि अक्सर लोग इस हकीकत से बाखबर नहीं हैं। वो चाहता है कि लोगों के लिए इस अम्र को वाज़ेह कर दे जिसमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं, और कुफ्फार को यह मालूम हो जाए कि वो वाकई झूठ बोला करते थे। हम जिस चीज का इरादा कर लेते हैं उससे फकत इतना कहते हैं कि हो जा, और फिर वो हो जाती है। और जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद राह खुदा में हिजरत इख्तियार की है, हम अनकरीब दुनिया में भी इनको बेहतरीन मकाम अता करेंगे, और आखिरत का अज्र तो यकीनन बहुत बड़ा है। अगर ये लोग इस हकीकत से बाखबर हों, यही वो लोग हैं जिन्होंने सब्र किया है और अपने परवरदिगार पर भरोसा करते रहे हैं। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी मर्दों ही को रसूल बनाकर भेजा है और इनकी तरफ भी वही करते रहे हैं। तो इनसे कहिए कि अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से दरियाफ्त करो। और हमने इन रसूलों को मौजज़ात और किताबों के साथ भेजा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी जिक्र कुरान को नाजिल किया है ताकि इनके लिए इन अहकाम को वाज़ेह कर दे जो इनकी तरफ नाजिल किए गए हैं, और शायद ये इस बारे में कुछ गौर फिक्र करें। क्या ये बुराइयों की तदबीरें करने वाले कुफ्फार इस बात से मुतमईन हो गए हैं कि अल्लाह अचानक इन्हें जमीन में धंसा दे, या इन तक इस तरह अजाब आ जाए कि इन्हें इसका शऊर भी ना हो, या इन्हें चलते फिरते गिरफ्तार कर लिया जाए कि ये अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते हैं, या फिर इन्हें डरा डरा कर धीरे धीरे गिरफ्त में लिया जाए कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा शफीक और मेहरबान है। क्या इन लोगों ने इन मखलूकात को नहीं देखा है जिनका साया दाहिने बाएं पलटता रहता है कि सब उसकी बारगाह में तवाज़ु इंकिसार के साथ सजदा रेज़ हैं, और अल्लाह ही के लिए आसमान की तमाम चीजें और जमीन के तमाम चलने वाले और मलाइका सजदा रेज़ हैं, और कोई इस्तकबार करने वाला नहीं है। ये सब अपने परवरदिगार की बरतरी और अजमत से खौफजदा हैं और उसी के अम्र के मुताबिक काम कर रहे हैं। और अल्लाह ने कह दिया है कि खबरदार, दो खुदा ना बनाओ कि अल्लाह सिर्फ खुदाए वाहिद है, लिहाजा मुझ ही से डरो। और उसी के लिए जमीन और आसमान की हर शय है, और उसी के लिए दायमी अताअत भी है। तो क्या तुम गैर खुदा से भी डरते हो? और तुम्हारे पास जो भी नेमत है वो सब अल्लाह ही की तरफ से है, और इसके बाद भी जब तुम्हें कोई तकलीफ छू लेती है तो तुम उसी से फरियाद करते हो, और जब वो तकलीफ को दूर कर देता है तो तुम में से एक ग्रोह अपने परवरदिगार का शरीक बनाने लगता है ताकि इन नेमतों का इनकार कर दे जो हमने इन्हें अता की हैं। खैर, चंद रोज और मजे कर लो, उसके बाद अंजाम मालूम ही हो जाएगा। और ये हमारे दिए हुए रिस्क में से इनका भी हिस्सा करार देते हैं जिन्हें जानते भी नहीं है, तो अनकरीब तुमसे तुम्हारे इफ्तरा के बारे में भी सवाल किया जाएगा। और ये अल्लाह के लिए लड़कियां करार देते हैं जबकि वो पाक और बेनियाज है, और ये जो कुछ चाहते हैं वो सब इन्हीं के लिए है। और जब खुद इनमें से किसी को लड़की की बशारत दी जाती है तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो खून के घूंट पीने लगता है, कौम से मुंह छुपाता है कि बहुत बुरी खबर सुनाई गई है, अब उसको जिल्लत समेत जिंदा रखें या खाक में मिला दे। यकीनन ये लोग बहुत बुरा फैसला कर रहे हैं। जिन लोगों का आखिरत पर ईमान नहीं है, इनकी मिसाल बदतरीन मिसाल है, और अल्लाह के लिए बेहतरीन मिसाल है कि वही साहिब इज्जत और साहिब हिकमत है। अगर खुदा लोगों से इनके जुल्म का मुआखजा करने लगता तो रूए जमीन पर एक रेंगने वाले को भी ना छोड़ता, लेकिन वो सबको एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिए ढील देता है। इसके बाद जब वक्त आ जाएगा
तो फिर ना एक साथ की ताखीर होगी और ना तकदीम। ये खुदा के लिए वो करार देते हैं जो खुद अपने लिए नापसंद करते हैं, और इनकी जबानें ये गलत बयानी भी करती हैं कि आखिरत में इनके लिए नेकी है, हालांकि यकीनी तौर पर इनके लिए जहन्नुम है और ये सबसे पहले ही डाले जाएंगे। अल्लाह की अपनी कसम कि हमने तुमसे पहले मुख्तलिफ कौमों की तरफ रसूल भेजे, तो शैतान ने इनके कारोबार को उनके लिए आरास्ता कर दिया और वही आज भी इनका सरपरस्त है और इनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब सिर्फ इसलिए नाजिल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मसाइल की वजाहत कर दें जिनमें ये इख्तिलाफ किए हुए हैं, और ये किताब साहिबान ईमान के लिए मुजस्समा हिदायत और रहमत है। और अल्लाह ही ने आसमान से पानी बरसाया है और इसके जरिए जमीन को मुर्दा होने के बाद दोबारा जिंदा किया है। इसमें भी बात सुनने वाली कौम के लिए निशानियां पाई जाती हैं। और तुम्हारे लिए हैवानात में भी इबरत का सामान है कि हम इनके शिकम से गोबर और खून के दरमियान से खालिस दूध निकालते हैं जो पीने वालों के लिए इंतहाई खुशगवार मालूम होता है। और फिर खुरमा और अंगूर के फलों से वो शीरा निकालते हैं जिससे तुम नशा और बेहतरीन रिस्क सब कुछ तैयार कर लेते हो। इसमें भी साहिबान अक्ल के लिए निशानियां पाई जाती हैं। और तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी को इशारा दिया कि पहाड़ों और दरख्तों और घरों की बुलंदियों में अपने घर बनाए, इसके बाद मुख्तलिफ फलों से ग़िज़ा हासिल करे और नरमी के साथ खुदाई रास्ते पर चले, जिसके बाद इसके शिकम से मुख्तलिफ किस्म के मशरूब बरामद होंगे जिसमें पूरे आलम इंसानियत के लिए शिफा का सामान है। और इसमें भी फिक्र करने वाली कौम के लिए एक निशानी है। और अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया है, फिर वही वफात देता है, और बाज लोगों को इतनी बदतरीन उम्र तक पलटा दिया जाता है कि इल्म के बाद भी कुछ जानने के काबिल ना रह जाएं। बेशक अल्लाह हर शय का जानने वाला और हर शय पर कुदरत रखने वाला है। और अल्लाह ही ने बास को रिस्क में बास पर फजीलत दी है, तो जिनको बेहतर बनाया गया है वो अपना बकिया रिस्क इनकी तरफ नहीं पलटा देते हैं जो इनके हाथों की मिल्कियत है, हालांकि रिस्क में सब बराबर की हैसियत रखने वाले हैं। तो क्या ये लोग अल्लाह ही की नेमत का इनकार कर रहे हैं? और अल्लाह ही ने तुम्हीं में से तुम्हारा जोड़ा बनाया है, फिर इस जोड़े से औलाद करार दी है और सबको पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है। तो क्या ये लोग बातिल पर ईमान रखते हैं और अल्लाह ही की नेमत से इनकार करते हैं? और ये लोग अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हैं जो न आसमान और जमीन में किसी रिज़्क़ के मालिक हैं और न किसी चीज की ताकत ही रखते हैं। तो खबरदार अल्लाह के लिए मिसालें बयान ना करो कि अल्लाह सब कुछ जानता है और तुम कुछ नहीं जानते हो। अल्लाह ने खुद उस गुलाम ममलूक की मिसाल बयान की है जो किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता है, और इस आजाद इंसान की मिसाल बयान की है जिसे हमने बेहतरीन रिज़्क़ अता किया है और वो इसमें से खुफिया और एलानिया इंफाक करता रहता है। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? सारी तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए ही है, मगर इन लोगों की अक्सरियत कुछ नहीं जानती है। और अल्लाह ने एक और मिसाल इन दो इंसानों की बयान की है जिसमें से एक गूंगा है और इसके बस में कुछ नहीं है, बल्कि वो खुद अपने मौला के सर पर एक बोझ है कि जिस तरफ भी भेज दे कोई खैर लेकर नहीं आएगा। तो क्या वो इसके बराबर हो सकता है जो अदल का हुक्म देता है और सीधे रास्ते पर गामजन है? आसमान और जमीन का सारा गैब अल्लाह ही के लिए है और कयामत का हुक्म तो सिर्फ एक पलक झपकने के बराबर या इससे भी करीब तर है। और यकीनन अल्लाह हर शय पर कुदरत रखने वाला है। और अल्लाह ही ने तुम्हें शिकम मादर से इस तरह निकाला है कि तुम कुछ नहीं जानते थे, और उसी ने तुम्हारे लिए कान, आंख और दिल करार दिए हैं कि शायद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। क्या इन लोगों ने परिंदों की तरफ नहीं देखा कि वो किस तरह फजाए आसमान में मुसख्खर हैं कि अल्लाह के अलावा इन्हें कोई रोकने वाला और संभालने वाला नहीं है? बेशक इसमें भी इस कौम के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो ईमान रखने वाली कौम है। और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को वजह सुकून बनाया है और तुम्हारे लिए जानवरों की खालों से ऐसे घर बना दिए हैं जिनको तुम रोजे सफर भी हल्का समझते हो और रोजे अकामत भी हल्का महसूस करते हो। और फिर इनके ऊन, रुएं और बालों से मुख्तलिफ सामान जिंदगी और एक मुद्दत के लिए कार आमद चीजें बना दे। और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए मखलूकात का साया करार दिया है और पहाड़ों में छुपने की जगहें बनाई हैं और ऐसे पैराहन बनाए हैं जो गर्मी से बचा सके और ऐसे पैराहन बनाए हैं जो हथियारों की जद से बचा सके। वो इसी तरह अपनी नेमतों को तुम्हारे ऊपर तमाम कर देता है कि शायद तुम अतात गुजार बन जाओ। फिर इसके बाद भी अगर ये जालिम मुंह फेर ले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ वाज़े पैगाम का पहुंचा देना है और बस। ये लोग अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं
और फिर इनकार करते हैं और इनकी अक्सरियत काफिर है। और कयामत के दिन हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और इसके बाद काफिरों को किसी तरह की इजाजत ना दी जाएगी और ना इनका उज़्र ही सुना जाएगा। और जब जालिमीन अजाब को देख लेंगे तो फिर इसमें कोई तखफीफ ना होगी और ना इन्हें किसी किस्म की मोहलत दी जाएगी। और जब मुशरिकीन अपने शुरका को देखेंगे तो कहेंगे, परवरदिगार, यही हमारे शुरका थे जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। फिर वो शुरका इस बात को इन्हीं की तरफ फेंक देंगे कि तुम लोग बिल्कुल झूठे हो, और फिर उस दिन अल्लाह की बारगाह में अतात की पेशकश करेंगे और जिन बातों का इफ्तरा किया करते थे वो सब गायब और बेकार हो जाएंगी। जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और राह खुदा में रुकावट पैदा की, हमने इनके अजाब में मजीद इजाफा कर दिया कि ये लोग फसाद बर्पा किया करते थे। और कयामत के दिन हम हर ग्रोह के खिलाफ इन्हीं में का एक गवाह उठाएंगे और पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब का गवाह बनाकर ले आएंगे। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल की है जिसमें हर शय की वजाहत मौजूद है, और यह किताब अतात गुजारों के लिए हिदायत, रहमत और बशारत है। बेशक अल्लाह अदल, एहसान और कराबतदारों के हुकूक की अदायगी का हुक्म देता है और बदकारी, नाशाइस्ता हरकत और जुल्म से मना करता है कि शायद तुम लोग इसी तरह नसीहत हासिल कर लो। और जब कोई अहद करो तो अल्लाह के अहद को पूरा करो और अपनी कसमों को इनके इस्तेकाम के बाद हरगिज मत तोड़ो, जबकि तुम अल्लाह को कफील और निगरां बना चुके हो कि यकीनन अल्लाह तुम्हारे अफआल को खूब जानता है। और खबरदार, इस औरत के मानिंद ना हो जाओ जिसने अपने धागे को मजबूत काटने के बाद फिर इसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। क्या तुम अपने मुआहदे को इस चालाकी का जरिया बनाते हो कि एक ग्रोह दूसरे ग्रोह से ज्यादा फायदा हासिल करे? अल्लाह तुम्हें इन्हीं बातों के जरिए आजमा रहा है और यकीनन रोज क़यामत इस अम्र की वजाहत कर देगा जिसमें तुम आपस में इख्तिलाफ कर रहे थे। और अगर परवरदिगार चाहता तो जबरन तुम सबको एक कौम बना देता, लेकिन वो इख्तियार देकर जिसे चाहता है गुमराही में छोड़ देता है और जिसे चाहता है मंजिल हिदायत तक पहुंचा देता है। और तुमसे यकीनन इन अमाल के बारे में सवाल किया जाएगा जो तुम दुनिया में अंजाम दे रहे थे। और खबरदार, अपनी कसमों को फसाद का जरिया ना बनाओ कि 9 मुस्लिम अफराद के कदम साबित होने के बाद फिर उखड़ जाएं और तुम्हें राय खुदा से रोकने की पादाश में बड़े अजाब का मजा चखना पड़े और तुम्हारे लिए अजाब अजीम हो जाए। और खबरदार, अल्लाह के अहद के एवज मामूली कीमत माले दुनिया ना लो कि जो कुछ अल्लाह के पास है वही तुम्हारे हक में बेहतर है। अगर तुम कुछ जानते बूझते हो, जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब खर्च हो जाएगा और जो कुछ अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है। और हम यकीनन सब्र करने वालों को इनके आमाल से बेहतर जजा अता करेंगे। जो शख्स भी नेक अमल करेगा वो मर्द हो या औरत, बशर्ते के साहिब ईमान हो, हम इसे पाकीज़ा हयात अता करेंगे और इन्हें इन अमाल से बेहतर जजा देंगे जो वो जिंदगी में अंजाम दे रहे थे। लिहाजा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ें तो शैतान रजीम के मुकाबले के लिए अल्लाह से पनाह तलब करें। शैतान हरगिज इन लोगों पर गलबा नहीं पा सकता जो साहिब ईमान है और जिनका अल्लाह पर तवक्कुल और एतमाद है। उसका गलबा सिर्फ इन लोगों पर होता है जो उसे सरपरस्त बनाते हैं और अल्लाह के बारे में शिर्क करने वाले हैं। और हम जब एक आयत की जगह दूसरी आयत तब्दील करते हैं तो अगरचे खुदा खूब जानता है कि वो क्या नाजिल कर रहा है, लेकिन ये लोग यही कहते हैं कि मोहम्मद तुम इफ्तरा करने वाले हो, हालांकि इनकी अक्सरियत कुछ नहीं जानती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि इस कुरान को रूहुल कुद्स जिब्रील ने तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक के साथ नाजिल किया है ताकि साहिबान ईमान को सबात व इस्तक़लाल अता करे, और ये अतात गुजारों के लिए एक हिदायत और बशारत है। और हम खूब जानते हैं कि ये मुश्रिकीन ये कहते हैं कि इन्हें कोई इंसान इस कुरान की तालीम दे रहा है, हालांकि जिसकी तरफ ये निस्बत देते हैं वो अजमी है और ये जबान अरबी वाज़े और फसी है। बेशक जो लोग अल्लाह की निशानियों पर ईमान नहीं लाते हैं, खुदा इन्हें हिदायत भी नहीं देता है और इनके लिए दर्दनाक अजाब भी है। यकीनन गलत इल्जाम लगाने वाले सिर्फ वही अफराद होते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते हैं, और वही झूठे भी होते हैं। जो शख्स भी ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार कर ले, अलावा इसके कि जो कुफ्र पर मजबूर कर दिया जाए और इसका दिल ईमान की तरफ से मुतमईन हो और कुफ्र के लिए सीना कुशादा रखता हो, उसके ऊपर खुदा का गजब है और उसके लिए बहुत बड़ा अजाब है। ये इसलिए कि इन लोगों ने जिंदगानी दुनिया को आखिरत पर मुकद्दम किया है और अल्लाह जालिम कौमों को हरगिज़ हिदायत नहीं देता है।
یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور آنکھ کان پر کفر کی چھاپ لگا دی گئی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً حقائق سے غافل ہیں، اور یقیناً یہی لوگ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہیں۔ اس کے بعد تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی ہے اور پھر جہاد بھی کیا ہے اور صبر سے بھی کام لیا ہے، یقیناً تمہارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان اپنے نفس کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے حاضر ہوگا، اور ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ نے اس قریے کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی، اور اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریے کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، تو خدا نے انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھا دیا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ لہٰذا اب تم اللہ کے دیے ہوئے رزق حلال و پاکیزہ کو کھاؤ، اور اس کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرتے رہو۔ اس نے تمہارے لیے صرف مردار، خون، سور کا گوشت اور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے اسے حرام کر دیا ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی شخص مضطر و مجبور ہو جائے اور نہ بغاوت کرے نہ حد سے تجاوز کرے تو خدا بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور خبردار، جو تمہاری زبانیں غلط بیانی سے کام لیتی ہیں، اس کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اس طرح خدا پر جھوٹا بہتان باندھنے والے ہو جاؤ گے، اور جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں ان کے لیے فلاح اور کامیابی نہیں ہے۔ یہ دنیا صرف ایک مختصر لذت ہے، اور اس کے بعد ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے یہودیوں کے لیے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہے جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اور یہ ہم نے ظلم نہیں کیا ہے بلکہ وہ خود اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے۔ اس کے بعد تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی میں برائیاں کی ہیں اور اس کے بعد توبہ بھی کر لی ہے اور اپنے کو سدھار بھی لیا ہے، تمہارا پروردگار ان باتوں کے بعد بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم ایک مستقل امت اور اللہ کے اطاعت گزار اور باطل سے کترا کر چلنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ خدا نے انہیں منتخب کیا تھا اور سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی نیکی عطا کی اور آخرت میں بھی ان کا شمار نیک کردار لوگوں میں ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی کہ ابراہیم حنیف کے طریقے کا اتباع کریں کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ہفتے کے دن کی تعظیم صرف ان لوگوں کے لیے قرار دی گئی تھی جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار روز قیامت ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دیں، اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو بہترین طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک گیا ہے اور کون لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اگر تم ان کے ساتھ سختی بھی کرو تو اسی قدر جس قدر انہوں نے تمہارے ساتھ سختی کی ہے، اور اگر صبر کرو تو صبر بہرحال صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر ہی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہوگا، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو اور ان کی مکاریوں کی وجہ سے تنگ دلی کا بھی شکار نہ ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے اور جو نیک عمل انجام دینے والے ہیں۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا